How is everyone? I hope you all are fine and doing great. Okay. So as you all know that we start our class with the name of Allah, right? So you all remember that in the previous classes we used to, recite any surah, and I randomly pick some of you, one of some all from all the students, किसी एक student को pick करके I used to ask you people to do the recitation. ठीक है? So today I will be picking up Ishal Khan. Ishal Khan, open your camera. Abdullah, Hiba, Alishba. I want Ayan Ahmed. I want every one of you to open your cameras. Okay, so Ishal Khan, open your camera and I want you to do the recitation today. Very good, Ishal. Thank you so much for opening your camera. Okay, Ayan Ahmed, open your camera. I want all the girls to cover their head. Amna Tabish, I want you to cover your head. Hiba, cover your head. And Ishal, I'm unmuting you. Unmute yourself and kindly start the recitation so that we in the lecture of today. Yes, teacher. बेटे आप कोई सूरा पढ़ेंगी, कोई रेसिटेशन करें स्टार्ट करने से पहले बेटे. आपको खा जाता है, कई दिमाग का काम नहीं करने. बोल दिया था, बंद हो गया. जी बेटे. जी बेटे बोलिए. मुझे कोई सूरत नहीं आती. बेटे आपको कोई सी भी सूरत नहीं आती? कोई सी भी नहीं सूरत. आपको कुलु अल्लाहु अहद आती है? सूरह इखलास नहीं आती मिस मुझे. अच्छा चले, let's give a chance to someone else. Start taking your Nazra classes, Ishul Khan. Okay, so let's give a chance to Alishba Hamid. Alishba, unmute yourself and do the recitation. Alishba. Okay. सूरत Any surah, जो बेटे कोई सी भी पढ़ लें. Any surah, Alishba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab ma aghna anhu maluhu ma kasab la naran zata lahab wa imratuhu hammalat al-hatab fi जज़ाकल्लाह अलिशबा. बेटे आप स्टक हो गए हो बट आपने पूरी पढ़ ली है. जज़ाकल्लाह. ओके, so let's not waste time and move towards our studies. So the students, those who took the class yesterday, must be know that what we learned yesterday. ठीक है, and I chose 3 students. I picked up 3 students जो आज हमें एक छोटा सा रिव्यू या हमें समरी देंगे. और वो कौन थे? Raise your hand through Zoom. एक तो वो मलाहिम थे, I remember. अलिशबा हमीद थी, I remember. And who was the third one? Who was the third one? Who was the third one? Abraham, you were not there. Okay, Abdul Bari. Yes, Abdul Bari, Alishba and Malahim. I will be, okay, first I will be showing you. Let Abdul Bari join the class. फिर मैं बताती हूँ.
Okay, so Alishba, Malahim, Abdul Bari, you three people are going to give a review today of the yesterday class, ठीक है? And this will be done every day. जो हम आज पढ़ेंगे उसका review next class में कोई से भी 3 students हमें देंगे. Okay, is it clear to everyone? Give me a thumbs up through Zoom. Give me a thumbs up through Zoom. Okay, excellent, very good. So let's not waste time. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो 3 स्टूडेंट्स आपको समरी देने वाले हैं, आपको जो एक रिव्यू देने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? जो मैंने कल दिखाई थी ना एडिशन की वीडियो, मैं उसको दोबारा आपको शो कर रही हूँ. उसके बाद उसका रिव्यू 3 स्टूडेंट्स हमें देंगे, और वो 3 स्टूडेंट्स कौन है? मलाहिम, अब्दुल बारी एंड अलिशबा हमीद. ओके, ये 3 स्टूडेंट्स हमें उसका रिव्यू देंगे. उसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप लेंगे अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर, ठीक है? जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है सब्ट्रैक्शन. तो पहले हम एडिशन को कवर करते हैं और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन with all of you. Give me a second. Okay, so here it is. Can you all see it? Send me a thumbs up through Zoom. Send me a thumbs up through Zoom if you can see the screen. If you can see my screen, just send me a thumbs up through Zoom. Send me a thumbs up through Zoom. Okay, and Ashraf, I can see your thumbs up. Okay, Maheen, Alishba, Amna Tabish, Malahim. What about the rest of the students? Okay, thank you everyone. Thank you so much. Okay. जी फाइक अनम्यूट करें बेटे, बोले क्या हुआ जी? बोलिए फाइक, बोलो बेटे. इस रिव्यू के बारे में बोलिए. बेटे मैं आपको जो ये वीडियो दिखा रही हूँ ना, इस वीडियो का रिव्यू देंगे 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? तो आप सब जरा दोबारा से वीडियो देख लें, फिर रिव्यू करेंगे. ओके ओके, सो हियर आई एम स्टार्टिंग. Abdullah, stop eating.
बेटे फिर आपको आपने देखी नहीं वीडियो। Okay, so okay, those who are raising their hands, why are you raising your hands continuously? Abraham, Rehan, Elishba, Zainab. Beta, is there any issue? Okay, Elishba, कोई problem है बेटा? अच्छा, पहले हम इनको अनम्यूट करते हैं, उसके बाद हम रिव्यू लेते हैं. So unmute yourself, Elishba Hamid. बेटे, you raised your hand. Is there any issue? टीचर मुझे आवाज नहीं आ रही थी. ओके, आपको आवाज नहीं आ रही थी, बट आपने पूरी वीडियो देखी? जी, और समझ में भी आ गया. ओके, वेरी गुड. अभी हम रिव्यू लेते हैं. जी रेहान, अनम्यूट योरसेल्फ. मिस, मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी. बेटे, क्यों नहीं आ रही थी? सबको तो आ रही थी. चले, कोई दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होता. अच्छा जी, तलबिया बोलो बेटे. मिस, मुझे भी आवाज नहीं आ रही. आवाज क्यों नहीं आ रही थी? अच्छा चले, आई एक्सप्लेन यू, कोई बात नहीं. आपने वीडियो तो देखी ना बेटे? पर आपने वीडियो देखी, ये बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वीडियो स्टार्ट करके. मिस, मैंने वीडियो देखी थी. आवाज जब आ रही थी बीच बीच में, तो अटक कर आ रही.
और मैं हल्की आपको हल्की मैं आवाज। आप सबको दोबारा से समझा दूंगी। जी हसान बोले बेटे, हसान अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए, बोलो हसान। जी हेलो मिस फिजा, जी मैं हसान की मामा हूँ। एक्चुअली हसान को ना सब फीवर बहुत तेज हो रहा है। ओके मैं ओके आपसे परमिशन लेना चाह रही हूँ कि मैं इसको लीव करवा दूँ क्लास। जी श्योर, कोई मसला नहीं है, टेक केयर ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, कोई मसला नहीं है। हसान टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके सो यस फरीहा, अनम्यूट योर सेल्फ बेटे, अनम्यूट करो बेटा। टीचर वीडियो तो देखी, लेकिन टीचर मुझे भी आवाज नहीं आ रही थी। आप लोग तो को टीचर आवाज क्या नहीं आप होगी? मुझे वापस से समझा जी देंगी? मैं आपको अभी आप सबको अभी समझा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू कर लेते हैं। या बताएं अब्दुल बारी, आपको आवाज आ रही थी तो आप रिव्यू कर सकते हैं। अब्दुल बारी, अलिशबा और मलाहिम, वेयर इज मलाहिम? मलाहिम also left the class. He joined the class. Where is he? He's gone. Okay, so let's not waste the time and just look at the screen again. Here it is. Okay, so start the video again. Okay, so I'll be explaining you. मैं आपको साथ साथ explain करती जाऊंगी what is actually happening. Okay. Okay, so we will be learning about the addition concept and the properties of addition. ठीक है कि what is actually addition, addition होता क्या है, ठीक है, और उसकी properties क्या है, ठीक है। अब वो आपको ये कह रहे हैं कि एडिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम कुछ चीजों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखते हैं। मतलब टुगेदर रखना मतलब साथ में रखना, ठीक है, उनको एक साथ पाइल अप करना, ठीक है। लेट्स, शी इज गिविंग एग्जांपल ऑफ बुक्स। अब वो आपसे क्या कह रही हैं? वो आपसे कह रही हैं देयर आर सम लॉन्ग बुक्स ऑन द टेबल एंड देयर आर सम शॉर्ट बुक्स एज वेल, ठीक है। अब वो आपसे कह रही हैं हमें ये तो पता है कि 32 स्मॉल बुक्स हैं और 25 लॉन्ग बुक्स हैं, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि हमारे पास टोटल बुक्स कितनी हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई हमें ये नहीं पूछना कि लॉन्ग बुक्स और शॉर्ट बुक्स कितनी है, हमें ये पूछना है टोटल बुक्स कितनी है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है? अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई मुझे अगर हमारे पास दो बंचेस हैं, ठीक है, एक बंच में येलो फ्लावर्स हैं और एक बंच में रेड फ्लावर्स हैं, सही है, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि टोटल फ्लावर्स कितने हैं, तो हमें उन टोटल फ्लावर्स को काउंट करना पड़ेगा। हम ये नहीं काउंट करेंगे कि हमारे पास रेड फ्लावर्स कितने और येलो कितने, हम उनको काउंट करके ऐड करके टोटल फ्लावर्स बताएंगे, ठीक है। अब सेम जो चीज है ना वो यहाँ वीडियो में हो रही है कि वो आपसे कह रहे हैं कि हमें टोटल बुक्स बताएं। हमें ये मत बताएं कि लॉन्ग बुक्स कितनी है, शॉर्ट बुक्स कितनी है, ये तो हमें पता है, बट हमें ये बताएं कि टोटल बुक्स कितनी है, सही है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओके सो अब उन्होंने हमें बताया लॉन्ग बुक्स और शॉर्ट बुक्स का सम क्या आया 57। ठीक है, अब जो हमारे पास जो नंबर होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमें 25 + 32 करना है, तो जो मैथमेटिकल टर्म्स होती है ना इनकी, वो मैथमेटिकल टर्म्स क्या है, एडेंड। ठीक है, ये 25 जो है वो फर्स्ट एडेंड है, मतलब जो ऊपर हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं ना दैट इज द फर्स्ट एडेंड, और जो हम सेकंड नंबर लिखते हैं ना प्लस के साइन के साथ दैट इज द सेकंड एडेंड। ठीक है, और जो उसका आंसर आता है ना उसको हम क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इज इट क्लियर अप टिल नाउ टू एवरीवन? सबको समझ में आया? अभी तक सबको सब समझ में आया? शो मी अ थम्स अप थ्रू जूम। मुझे जरा एक थम्स अप थ्रू जूम भेज दें जल्दी से। ओके, आई कैन सी सो मेनी थम्स अप, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब लेट्स सपोज हम कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, सही है, और अगर उसमें आपसे कहे कि फाइंड आउट इन ऑल, ठीक है, अगर वो आपसे कुछ कहे कि भाई इन ऑल में आपको बताना है, तो दैट मीन्स एडिशन की बात हो रही है। अगर वो आपसे कहे ऑल टुगेदर का सम निकालना है, तो तब भी क्या मतलब है, एडिशन की बात हो रही है। अगर वो आपसे टोटल की बात करें या सम की बात करें, तो क्या मकसद हुआ इसका, कि हम एडिशन की बात कर रहे हैं। These are the four terms that we use when the word problem is related to addition. ठीक है, अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम एडिशन का होगा तो उसके अंदर ये टर्म्स यूज हुई भी होंगी। These four terms, the first one is in all, the second is all together, the third is total, the fourth is sum. Is it clear? Okay, let's move forward. Okay, so as you all know कि हमने पहले एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, now we will be learning about the properties of addition. ठीक है, तो there are three main properties of addition. The first one is zero property of addition, the second is order property of addition, and the third one is grouping property of addition. ठीक है, हम आगे देखते हैं कि वो क्या बता रही हैं, फिर हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे। Okay, now what happens is कि they are saying zero property of addition. अब zero property of addition में होता क्या है कि अब हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, they took 315, ठीक है, उन्होंने कहा अगर हम 315 को ऐड करेंगे जीरो से, so the answer will remain same, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, और अगर हम जीरो के अंदर 315 ऐड करेंगे तो तब भी आंसर क्या रहेगा हमारा, सेम, कोई आंसर पे हमारे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, समझ में आया सबके कि जो आंसर है ना उस पे हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है, क्योंकि हम ऐड जब जीरो में कर रहे हैं दैट मीन्स अगर एक बॉक्स के अंदर मैं एक खाली एक बॉक्स है जिसके अंदर पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ, 315 + 0। ठीक है, अगर एक बॉक्स है उसके अंदर 315 पेंसिल्स हैं, ठीक है, और मैं उसके अंदर 0 पेंसिल डाल देती हूँ, तो क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तो कुछ भी नहीं होता ना, जीरो मीन्स देयर इज नथिंग, राइट? तो क्या नाम है, वो बॉक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वो 315 पेंसिल्स ही रहेंगी। और लेट सपोज एक खाली बॉक्स है, उसके अंदर मैं 315 पेंसिल्स डाल देती हूँ, ठीक है, तो उसका सम क्या हो जाएगा, वो खाली बॉक्स था और इसके अंदर पेंसिल्स कितनी चली गई, 315, तो आंसर हमारा सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज द जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन।
Okay, so the second property is the order property of addition. ठीक है, let's see. Let the numbers come over here, then I'll explain it. Now let's suppose we have two numbers. ठीक है, एक number है हमारे पास 182 and the second number that we are adding is 316. ठीक है, when we both numbers we get the answer 498. ठीक है, now अब हम करेंगे क्या, हम इनको जो है ना इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे. सही है, मतलब जो ये बिगेस्ट नंबर है ना इसको हम ऊपर ले जाएंगे एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है हम उसको नीचे ले आएंगे. इज इट क्लियर? नाउ व्हेन वी विल two numbers in this order, ठीक है, in this order, so what with the answer will also remain same. ठीक है, इनका जो सम आएगा वो भी सेम रहेगा. इसका मतलब है कि जब हम ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पे भी अपना काम करते हैं, हम अपना सम निकालते हैं, तो हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 182 is 300 is plus 316 is equals to 316 plus 182. ये दोनों इक्वल हैं. ठीक है, ऑर्डर चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक है, ऑर्डर चेंज करना क्या मकसद था कि हम बिग नंबर को ऊपर ले जाएं, बिग नंबर को हम फर्स्ट एडेंड बना दें और स्मॉल नंबर को हम सेकेंड एडेंड बना दें, तो हमारा सम बिल्कुल सेम ही आएगा, उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, अब वो आपको कह रहे हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में होता क्या है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में होता ये है कि वी टेक 3 नंबर्स. ठीक है, 3 और मोर देन 3 नंबर्स. अभी आप सिर्फ 3 नंबर्स पे सीखो. ठीक है, फिर वी विल बी लर्निंग ऑन 4 नंबर्स एज वेल, डोंट वरी अबाउट दैट. अच्छा, तो वो आपको कह रहे हैं कि वी टुक 4 नंबर्स, 3 नंबर्स. ठीक है, फिर हमने किया क्या कि हमने 2 नंबर्स का ग्रुप बना दिया. ठीक है, वी टुक नंबर्स 40 प्लस 50 प्लस 20. ठीक है, हमने 40 और 50 का ग्रुप बना दिया. ठीक है, अब हमें इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है? वी आर सपोज टू सॉल्व द ग्रुप. जो है ना, हमें पहले ग्रुप सॉल्व करना पड़ता है. अब हमने उस ग्रुप को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 90 और फिर हम प्लस 20 एज इट इज नीचे लेकर आए and then we did the addition and we got the answer 110. ठीक है, अब हम इसको एक सेकेंड तरीके से भी सॉल्व करते हैं अगर हम 50 और 20 की ग्रुपिंग कर दें. ठीक है, लेट्स सी इन द वीडियो. सी, अगर हम 50 प्लस 20 को क्या नाम है ग्रुप बना दें, सो हमारे तब भी आंसर देखिएगा. ठीक है, 40 प्लस एज इट इज आ गया और जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 70 इज द आंसर. एंड सी, वी गेट द सेम आंसर. अब हम ग्रुपिंग इस साइड से करते या हम ग्रुपिंग इस साइड से करते, वी गॉट द आंसर सेम. हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. इज इट क्लियर? Okay, so she is saying changing the grouping of the addends does not change the sum. मतलब अगर हम addends की grouping को change कर दें तो हमारे sum पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, हमने ये तीनों प्रॉपर्टीज में ये बात सीखी कि अगर हम 0 के साथ किसी एडेंड को ऐड कर दें तो हमारा सम चेंज नहीं होगा. अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें फर्स्ट एडेंड और सेकेंड एडेंड का, तब भी हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और अगर हम ग्रुपिंग से भी कर दें, ठीक है, मतलब हम ग्रुपिंग एडेंड्स की ग्रुपिंग चेंज कर दें, तब भी हमारे पास आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इज इट क्लियर अप टिल नाउ?
सबको तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आई? इज इट क्लियर? ओके, सो आई होप यू ऑल आर हैविंग योर रफ कॉपीज. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर थिंग, आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग. आप सबने सिलेबस लिखा था ना रफ कॉपी में? आप सबने रफ कॉपी में सिलेबस लिखा था. तो अभी ना जब आपको कॉपीज का सेट मिल जाएगा तो ये सारा काम जो है ना हम अपनी फेयर कॉपी में करेंगे. जो हमारे पास हमारी स्कूल की नोटबुक्स आ जाएंगी ना, कॉपीज आ जाएंगी, हम उसके अंदर अपना ये सारा काम करेंगे जो हम रफ कॉपी में कर रहे हैं. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? ठीक है. सो जी फाइक बेटे बोलो, अनम्यूट करो, बोलो. मिस स्कूल कब से खुल रहे? बेटे यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दैट. ठीक है, अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ही लोगे. जी ईशल खान, यू रेज योर हैंड, बोलो बेटा. टीचर को बोल दो तुम मैं कल का काम नहीं कर रहा. ईशल बोलो बेटे. बोल दो काम. टीचर, जी वो मैंने कल का काम दे देंगी मुझको? वो बेटे मैंने नहीं कल आई कोई थी। होमवर्क नहीं दिया था, यही वीडियो दिखाई थी और यही एक्सप्लेनेशन दी थी. दैट्स इट, और कुछ नहीं, हमने कोई काम नहीं किया था. ठीक है, टीचर, वो जो मैं होमवर्क भी नहीं मिला था. इतने दिनों से जो मैं छुट्टी करी थी ना, मेरा नेट नहीं चल रहा था. नो प्रॉब्लम बेटे, नो प्रॉब्लम. जी हिबा, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट योरसेल्फ, बोलो बेटा. मैं लैपटॉप से ज्वाइन हुई ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें मुझे ऑप्शन नहीं आ रहे रेज हैंड करने का. अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं. ओके, यस अब्दुल बारी, अनम्यूट योरसेल्फ. मिस, ये जो आप अभी होमवर्क जो बता रही हैं, ये हमें क्या उसमें लिखना है? स्कूल की कॉपी में लिखना है? बेटे अभी आप लोग को, कुछ स्टूडेंट्स को ना कॉपीज नहीं मिली हैं. ठीक है, कुछ को मिली है, कुछ को नहीं मिली है. ठीक है, तो इशू नहीं है. अभी अभी आप रफ कॉपी में लिखो. जब हम न्यू कॉपीज में अपना काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग को तब बताती जाऊंगी. ओके, तो आप लोग साथ साथ करते जाओ. मिस, वो तो मेरे पास भी नहीं है जो आपने जो दिए बेटे कोई बात नहीं, आपके पास रफ कॉपी तो है ना? रफ कॉपी, यस. तो बस रफ कॉपी में करेंगे, क्या टेंशन है? सही है. ओके. ओके, डोंट गेट वरीड बेटा. ओके जी फरीहा, अनम्यूट करें बेटे. टीचर, मुझे पूछना था कि ना, वो टीचर जो हमारी ऑनलाइन क्लास का टाइम टेबल है ना, वो आप नंबर पे सेंड कर देंगी टीचर, क्योंकि मेरा टाइम टेबल मैंने लिखा था तो खो गया था. और टीचर अभी मुझे पता भी नहीं है कि इसके बाद कौन सी क्लास है और उसके बाद भी कौन सी क्लास है. ओके ओके, मैं आपको भेज देती हूँ, कोई मसला नहीं है. ओके मिस, थैंक हेलो, यू. उसमें से कोई हेल्प कर देगा? जैनब आपको पता है ना नेक्स्ट क्लास कौन सी है? न्यूमरेसी के बाद 3:30 के बाद कौन सी क्लास है जैनब? जैनब बताएं. आर्ट्स की है. आर्ट्स की क्लास है. ठीक है, यू आर सपोज टू ज्वाइन मिस आमना's क्लास. ओके ओके फरिया, give me a thumbs up through Zoom. फरिया, give me a thumbs up through Zoom. जी तलबिया, अनम्यूट योरसेल्फ, बोले हैं बेटे. मिस, प्लीज आप दोबारा बता दें कि कौन सी क्लास है? आर्ट्स की क्लास है बेटे. मुझे समझ नहीं आया. यू हैव अ आर्ट्स क्लास. ओके, थैंक. अच्छा, सो अलिशबा हमीद, वेयर इज अलिशबा? ओके अलिशबा, अलिशबा अब्दुल बारी, मलाहिम तो चले गए हैं, लेकिन अलिशबा और अब्दुल बारी जरा हमें जो है वो, मैं आप दोनों को अनम्यूट कर रही हूँ, अनम्यूट करें और मुझे इस वीडियो का छोटा सा रिव्यू दें जो मैंने दी है. अलिशबा जरा हमें समझाएं कि जो है वो जीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है. व्हाट इज बेसिकली द जीरो प्रॉपर्टी? हम किसी भी नंबर के साथ 0 लगा देंगे तो उसका आंसर वो ही आएगा. हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आर यू श्योर? यस. ओके, वेरी गुड. कोई एग्जांपल दे सकती हैं अलिशबा आप हमें? अनम्यूट करिएगा. सॉरी मैंने. यस. कोई एग्जांपल दीजिए बेटे.
I have 5 pencils. ठीक है. I put 0. I have 5 pencils. I put 0 pencils in it. So what? Our answer will be 5. वेरी गुड. और अगर एक बॉक्स में 0 पेंसिल्स हैं और आपने डाल दिए तो आंसर क्या 0 आएगा? नहीं, आंसर वो ही आएगा. ओके, एक्सीलेंट. अब्दुल बारी जरा मुझे क्या नाम है, ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाइएगा. अब्दुल बारी, जरा अपने फेलोज को ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाइए प्लीज. मिस, अगर हम 4 प्लस अगर 70 करेंगे तो 110 आएगा आंसर. ठीक है. मिस, कहना आपने तो मुझे समझाया था, वो 2 दफा समझाया था. क्या कह रहे हैं बेटे, दोबारा बोलें. अब्दुल बारी, हमें समझाइए ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है. अच्छा, हमें बताएं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है. ओके, फाइक जरा हमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. फाइक, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. अनम्यूट करें खुद को. मिस, मुझे नहीं पता. बेटे क्यों नहीं पता, क्या मैंने आपको अभी समझाया नहीं है? मिस, मैं अभी मुझे पता नहीं है, और आपकी आवाज भी मुझे शायद अटक अटक के बहुत आती है. अयान अशरफ, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. अनम्यूट करें खुद को. ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं अयान अशरफ. अयान अशरफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है. अयान अशरफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है. हिबा, अनम्यूट करें और मुझे ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. हम सबको मतलब. हिबा, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मिस. ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. मिस, आपकी आवाज इतनी देर से अटक अटक के आ रही थी, और मेरे पास फोन नहीं है ना. ओके जी. अब अब्राहम हमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझाएं. The ordering property of addition means that you can change the bigger amount down and the smaller amount of that doesn't count because it is addition and you are doing ordering. So that's why you can change the numbers upside or down, that will not count and the answer will be same. Excellent, very good. अच्छा, so this class is about to end. I want you all to rejoin the class. ठीक है? Rejoin the class. I'm starting a new one.